Hello and welcome to NLCC classes. I am your mentor and host from NLCC classes, Advocate Mohammad Nasser Kazim. On behalf of NLCC classes and team, I welcome you to our coaching. Before starting this class, I want to make an announcement that our early batch for entrance coaching for AMU Jamia, DU, BLLB, BA, 11th, BCom, CLAT, CUET, Judiciary, APU, LLM and various other courses batches are started and rest batches are going to start soon. So if you are someone who are looking for great coaching experience and in a very less fee, then you are welcome to NLCC classes. Few classes we provide on YouTube free like this one, and other classes are paid whose demo are available on our YouTube channel. And about offers, you can contact us directly on our Insta NLCC classes page, or you can message directly on our WhatsApp number 8218342419. So do join us, don't be late and don't be fooled by wasting your money to expensive coachings. Just join NLCC classes and secure your seat before it's too late. Now I'm going to start this class, and before starting the class, I want to request to all the students and anybody watching this class that whenever you watch this class, please like and share and subscribe channel NLCC classes with your love and support. This will motivate us and help us to bring more free lectures for you free of cost. If you do like our videos and share and tell your friends about us, and keep sharing about NLCC classes to your friends, because if we can help someone, then we can help someone by sharing. So become a part of NLCC wherever you are, either in online and offline, and call us to know offers more and more. And if you are referred by someone, then tell his name, we will give you more discount. Okay, now please like the video. Walaikum assalam sabhi ko, like the video. I will start the class when likes will cross 10. Okay, target of likes starting is 10. So right now I have only 2 likes. I am waiting for 10 likes at least, then I will start the class. Those who are joining the class, please like the class. आप जब भी क्लास ज्वाइन करें, आप क्लास को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें. ठीक है, जब भी हमारी कोई भी क्लास आप देखें उसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें. राइट नाउ जो भी बच्चे मेरे कोचिंग केस में ज्वाइंट हैं अभी, वो लोग अपना नाम से मैसेज कर दें. जैस्मीन और यास्मीन कहा गया है. बाकी जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं वो भी मैसेज करके अपने बारे में बता सकते हैं. जो कोचिंग का पार्ट नहीं है वो भी अपना नाम शेयर कर सकते हैं. और 10 लाइक्स पे आई विल स्टार्ट दिस क्लास. तो जल्दी से 10 लाइक्स करें. आज टारगेट सेट किया है, उसके बाद ही क्लास शुरू होगी. 4 likes right now, 4 viewers and 4 likes. I want more likes and more viewers. I will wait until 10 likes will complete. Okay, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास. तो पहला हिंदू वोकैबुलरी. डेट पे इतना ध्यान मत दिए, डेट से इतना फर्क नहीं पड़ता है. पहले हम पढ़ रहे हैं कि आज का इंपॉर्टेंट हिंदू वोकैबुलरी क्या है. तो भाई एब्रोगेट. एब्रोगेट की मीनिंग होती है टू रिपील और एबॉलिश अ लॉ. किसी लॉ को एबॉलिश करना या फिर चेंज करना, खत्म करना. और एग्रीमेंट फॉर्मली, या फिर एग्रीमेंट भी हम कह सकते हैं फॉर्मली. और इसका हिंदी मीनिंग नहीं है, हटा दीजिए. सिनोनिम क्या है? एनल या फिर रिवोक या फिर कैंसिल करना. इसका सिनोनिम यानी सिमिलर वर्ड्स है. और एंटोनिम है इसका इनैक्ट, एस्टेब्लिश या फिर अपहोल्ड करना. ठीक है, बहुत इजी है. एस्टेब्लिश करना है, अपहोल्ड करना. एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए इसका. कॉल्स टू एब्रोगेट फिशिंग एग्रीमेंट्स अरोज ओवर. कोई भी जगह ले लो, ये वाली ले लो, गोवा ले लो, दिल्ली ले लो, अलीगढ़ ले लो. यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं कि भाई ऐसी. अच्छा, एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं आज आप लोग बताइए. ये एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए. आज मैंने आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा बहुत दिनों से. आपके सामने लिखा हुआ है लेस आई एम जस्ट चेकिंग योर इंग्लिश. तो ये बताइए जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, कमेंट में बताइए. आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस. यास्मीन, जैस्मीन, सामिया और बाकी जो भी ऑनलाइन है प्लीज कमेंट. जब तक मैं रिलेटेड वर्ड्स पढ़ दे रहा हूँ. एब्रोगेशन और एब्रोगेटेड का रिलेटेड वर्ड है, यानी सिनोनिम ही हो गया एक तरीके से. यानी एब्रोगेशन और एब्रोगेट का भी सेम सिनोनिम और सेम एंटोनिम होगा. सिंपल है बच्चों कि भाई बहुत ज्यादा डिमांड उठी कि खत्म कर दिया जाए फिशिंग एग्रीमेंट. ठीक है, कहाँ का? जो कि कच थीव में हुआ है. ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे बोली हुई है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सेंस्योर. सेंस्योर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और ऑफिशियल रिप्राइंड. ठीक है, ये दो इसकी मीनिंग होती है, यानी डिसअप्रूवल करना. सिनोनिम इसका है क्रिटिसिज्म और
नेशन और रिब्यूक। एंटोनिम इसका प्रेज है, अप्रूवल है या कमेंडेशन है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? थरूर फेस्ड सेंसर फ्रॉम हिज पार्टी फॉर एलओसी रिमार्क। थरूर साहब एक नेता हैं, उन्होंने काफी सेंसर यानी एक डिसअप्रूवल फेस किया अपनी पार्टी की तरफ से जब उन्होंने एलओसी के ऊपर कुछ उल्टी सीधी कमेंट कर दी थी। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के ऊपर कमेंट कर दी। रिलेटेड वर्ड क्या हो गया? सेंस्योर हो गया और सेंस्योरेबल हो गया। नेक्स्ट इज डिसेंटर। डिसेंटर की मीनिंग होती है अ पर्सन हु डिसएग्रीज विद और अपोजेज एन एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन और ऑथोरिटी। कोई भी बंदा अगर किसी चीज को लेकर डिसएग्री करता है या अपोज करता है उसे हम डिसेंटर बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो गया डिसिडेंट, रेबल या फिर नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। एंटोनिम इसका हो गया कॉन्फॉर्मिस्ट, सपोर्टर या फिर एडहेरेंट। एग्जाम्पल है इसकी द डिसेंटर्स ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कंडेम्ड इंडिया एट द यूएन। तो भाई किसी के एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में डिसएग्रीमेंट था जिसकी वजह से इंडिया ने उस चीज को कंडेम किया यूएन के अंदर। ठीक है, उस कंडेम इंडिया एट द यूएन। अच्छा, इंडिया को कंडेम किया गया यूएन के किसी मीटिंग में। ठीक है, रिलेटेड वर्ड क्या हो गया? डिसेंट और डिसेंटिंग। नेक्स्ट इज इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट मतलब होता है एन ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस, यानी किसी चीज को रोकना। ऑब्स्टिकल मतलब बैरियर लगा देना। तो सिनोनिम भी क्या है? बैरियर है, ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर हिंड्रेंस है। एंटोनिम है आपका एड करना, एसिस्ट करना और फैसिलिटेटर, ये भी इसका एंटोनिम। एग्जांपल क्या हो गया? वीजा डिलेज आर एन इम्पीडिमेंट, यानी वीजा का जो डिले होता है वो एक तरीके का हिंड्रेंस है या ऑब्स्टिकल है स्टूडेंट्स के लिए, टू स्टूडेंट्स एजुकेशन प्लान, जो एजुकेशन बाहर प्लान कर रहे हैं जाके करने की। रिलेटेड वर्ड है एम्पेड या फिर एम्पेडिड। विलीफाई। विलीफाई का मीनिंग होता है टू स्पीक और राइट अबाउट समवन इन एन एब्यूजिवली डिस्पैरेगिंग वे। तो भाई किसी के बारे में आपने कुछ बोला है बहुत ही गंदे तरीके से, उसे हम बोलते हैं विलीफाई करना। आइए इसका सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम है इसका डिफेम करना या फिर सलेंडर करना या फिर मैलेगन करना। तो सलेंडर भी इज वन या डिफेम भी इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ किसी को बदनाम करना है, उसके बारे में बुरा भला बोलना। एंटोनिम है इसका प्रेज, ग्लोरीफाई या फिर कमेंट करना। एग्जाम्पल है ब्रांडिंग आसाम मुस्लिम्स एज फॉरेन बेनिफिट्स द कमिटी। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के और एक जगह के लोगों को क्या बोल रहे हैं, उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं उनकी कम्युनिटी के बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं? उन्हें डिफेम कर रहे हैं या फिर वेलीफाई कर रहे हैं। रिलेटेड वर्ड है इसका वेलीफाई या फिर वेलिफिकेशन। टेन्योर का मतलब होता है बेटा द पीरियड ड्यूरिंग विच समवन होल्ड्स अ पोजीशन और ऑफिस। एक टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड पे आप कोई ऑफिस को संभालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टेन्योर बोलते हैं। सिनोनिम इसका हो गया टर्म या फिर इनकम्बेंसी या फिर ड्यूरेशन, और एंटोनिम इसका हो गया वैकेंसी, डिसमिसल या फिर टर्मिनेशन। एग्जाम्पल है इसकी लेमाइन यमल एक्सटेंडेड हिज टेन्योर विद बार्सिलोना। एक फुटबॉल के प्लेयर हैं, इन्होंने अपना टाइम पीरियड बढ़ा दिया और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया एक कंपनी है उसके साथ जिसका नाम है बार्सिलोना। ओके, रिलेटेड वर्ड से इसका टेन्योर्ड या फिर टेन्योरिंग। नेक्स्ट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन की मीनिंग होती है द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द सेवेरिटी और इम्पैक्ट ऑफ समथिंग। कोई एक्ट ऐसा करना जिससे कोई चीज पे इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, कम या ज्यादा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? मिटिगेशन। सिनोनिम क्या हो गया? एलिविएशन, रिडक्शन या फिर मॉडरेशन। ठीक है, मॉडर्न करना, किसी को मॉडराइज करना किसी चीज को, या फिर किसी चीज को रिड्यूस करना, या एलिवेशन को आगे बढ़ाना। एंटोनिम इसका हो गया एग्रेवेशन, एस्केलेशन और इंटेंसिफिकेशन। ओके, एग्जांपल है इसकी WHO प्लान इंक्लूडेड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज फॉर कोविड-19। WHO के प्लान में पहले से कुछ ऐसा प्लान था जिससे वो इम्पैक्ट डालना चाहते थे या वो उससे कोविड-19 की जो सेवेरिटी उसको रिड्यूस करना चाहते थे। रिलेटेड वर्ड्स क्या है इसके? मिटिगेट करना या फिर मिटिगेटरी। नेक्स्ट इज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन इज अ लीगल इंग्लिश वर्ड अक्सर आस्क्ड इन AMU एंट्रेंस एग्जाम्स, ओके, और जामिया BLLB एंट्रेंस एग्जाम्स। मीनिंग और इवन इन CLAT और CUET दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर आस्क्ड। मीनिंग द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग समथिंग टू इट्स राइटफुल ओनर और कंपनसेटिंग फॉर लॉस। भाई किसी का कोई ओनर था, उसकी कोई चीज खो गई, उसको वो चीज वापस दी गई, तो हम बोलेंगे रेस्टिट्यूशन हुआ है। या फिर दूसरा क्या है? किसी का कोई नुकसान हुआ, उसकी आपने एग्जैक्ट भरपाई कर दी जो नुकसान हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। तो बेटा ये जो 5वां ऑनलाइन है, प्लीज लाइक द वीडियो। ये जो भी अभी ऑनलाइन है अपना नाम भी बता। सिनोनिम में इसका कंपनसेशन, रेपरेशन एंड रेड्रेस, और एंटोनिम है इसका डेप्रिवेशन, साइजर और रिटेंशन। ये जो भी लोग ऑनलाइन है प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। फराज आलम ने बताया है, तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी खुशी में, और अपने दोस्तों को NLCC क्लासेस के बारे में बताओ।
फराज आलम साहब बता रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया बीएससी ऑनर्स में, जनरल रैंक 30 आई है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन एनएलसीसी क्लासेस की तरफ से। आई होप फॉर योर बेटर फ्यूचर एंड ग्रेट लाइफ अहेड। गुड इवनिंग बेटा। जो भी लोग अभी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाना। एग्जाम्पल अपर्णा, एग्जाम्पल कटेशियस रेस्ट्रिक्शन कुड ए तमिलनाडु फिशरमैन। की एग्जाम्पल हमने पहले ही पढ़ी कि कुछ ना कुछ इसमें कुछ अगर रेस्टिट्यूशन अगर हम करते हैं तो क्या होगा उससे फायदा कि तमिलनाडु के फिशरमैन को उससे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा उसके लॉस का। रिलेटेड वर्ड्स क्या है, रेस्टिट्यूट करना या रेस्टिट्यूटिव। सप्रेस क्या होता है, सप्रेस मतलब होता है किसी को दबाना, ठीक है। थैंक यू सर फॉर योर लवली विशेस। यस बेटा, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। मीनिंग टू पुट एन एंड टू समथिंग फोर्सिबली और प्रिवेंट इट्स एक्सप्रेशन। इसका सप्रेस का मीनिंग होता है किसी चीज को फोर्सिबली खत्म कर देना, ठीक है। और सिनोनिम इसका क्या है, कोयल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम कोयल, सबड्यूज, सॉरी सबड्यू और रिप्रेस। एंटोनिम इसका इनकरेज, प्रमोट या फिर एक्सप्रेस करना। एग्जाम्पल है इसकी, रिसर्च सीक्स टू सप्रेस मलेरिया रेइन्फेक्शंस इफेक्टिवली। भाई रिसर्च का मतलब ही यही होता है कि आप किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं जड़ से। सॉरी फॉर दैट। रिलेटेड वर्ड्स हैं सप्रेशन या फिर सप्रेसेस। नेक्स्ट वर्ड इज डिसबर्स। की मीनिंग होती है टू पे आउट और डिस्ट्रीब्यूट फंड्स, ठीक है, कुछ देना या फिर फंड्स को बांटना। सिनोनिम में इसका डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सपेंड करना या फिर एलोकेट करना, ओके। और एंटोनिम इसका कलेक्ट करना, रिटेन करना या फिर विथहोल्ड करना। एग्जांपल क्या है इसकी, फंड्स वर डिसबर्स्ड फॉर रेल प्रोजेक्ट्स। तो फंड्स को डिसबर्स्ड, फंड्स को बांटा गया रेल प्रोजेक्ट के लिए, दो स्टेट के अंदर पैसे बांटे गए। रिलेटेड वर्ड्स हैं इसका डिसबर्समेंट या फिर डिसबर्स्ड, क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन। Your hard work attracts the success, sir. Definitely one day 1 million subscriber. Now, beta, keep sharing and thanks for such beautiful words and keep sharing to your friends as you share my content and keep loving and supporting as usual. And when you have time, please visit NLCC classes. Let's have a chit chat with tea with you. Okay. Okay. Next is current affairs. करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन आंसर आपके सामने है। व्हेन वाज, अगेन डेट से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, डेट 8 जून 9 जून का फर्क नहीं पड़ रहा है। व्हेन वाज द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे रिसेंटली ऑब्जर्व। तो रिसेंटली वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया गया, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया गया अभी रिसेंटली। हु रिसेंटली वॉन द नॉर्वे चेस वुमेन्स टूर्नामेंट। अभी नॉर्वे में वुमेन्स चेस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ली टिंग जी ने जीता है। हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द अपकमिंग G7 समिट इन कनाडा। तो G7 जो समिट होने वाली, जो कि अभी हुई भी है कनाडा में, उसमें कौन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इन 4 लोगों में से, तो नरेंद्र मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया। काउंसलिंग इज गोइंग ऑन एंड आफ्टर एडमिशन आई विल डेफिनेटली कम एंड मीटिंग यू सर। ओके बेटा, मोस्ट वेलकम एंड आफ्टर काउंसलिंग we will love to see you. Okay, now next is who has recently been appointed as a part time member of the 16th finance commission. तो अभी जो फाइनेंस कमीशन हुई है वो 16th फाइनेंस कमीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। में 4 ऑप्शन है। एस महेंद्र देव को अभी अपॉइंट किया गया पार्ट टाइम मेंबर 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का काम इंडिया में फाइनेंशियल मैटर्स देखना होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th वाले पॉइंट को कर लेना। Who hosted the 4th इंडिया ईस्ट एशिया डायलॉग 2025 इन दिल्ली रिसेंट। एक तरीके की कॉन्फ्रेंस होती है, इसके अंदर 4th नंबर की हुई थी। इसको किसने अभी हेल्ड किया था, किसने इसको होस्ट किया था, तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो कि नेता है उन्होंने किया था। हु रिसेंटली वॉन हर फर्स्ट फ्रेंच ओपन टाइटल। अभी पहली बार किसने फ्रांस में जाके फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है, तो आर्याना सबालेंका ने जीता है। आगे डी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है कोई, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डी ऑप्शन में भी नन था वैसे भी। हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड। इन्वायरमेंटल को लेकर के सबसे इन्फ्लुएंशियलिस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड किसको मिला है, तो सुदर्शन वेणु को मिला है इन ऑप्शंस। Dassault Aviation recently signed an memorandum of understanding MOU शॉर्ट में कहलाता है, with which Indian company। तो Dassault Aviation ने किसके साथ अभी करार किया है, टाटा कंपनी के साथ करार किया है। Which country has recently patented the technology to launch UAVs from space station। अभी कौन सी ऐसी कंट्री जिसने पेटेंट कराया है, पेटेंट मतलब होता है उन्होंने अपने नाम पे करा लिया, यानी इस तरीके को पहले कोई काम नहीं करा था, उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ किया है, ऐसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया जो कि इनकी ओरिजिनल है, जो कि यूएवीज को स्पेस से ही छोड़ेगी, धरती से ले जाने की जरूरत नहीं है। चाइना ने ये काम किया है और ये काम चाइना ही कर सकती है, जैसे चाइना इज वेरी एडवांस। एट वर्ल्ड एक्सपो 2025, वर्ल्ड एक्सपो जो अभी हुआ था 2025 में रिसेंटली, वेयर वाज इंडिया पवेलियन रैंक अमंग द टॉप 5 पवेलियन। इंडिया में जो क्रिकेट ग्राउंड है
पवेलियन वो इंडिया, हाँ तो वो दुनिया में जितने भी जगह पे पवेलियंस हैं उनमें कौन से रैंक पे है, सॉरी वेयर वाज द इंडिया पवेलियन रैंक्ड अमंग द टॉप 5। अच्छा सॉरी, इंडिया के पवेलियन को वर्ल्ड एक्सपो जो हुआ था वो जापान में हुआ था, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कहाँ पे वर्ल्ड एक्सपो हुआ था, जहाँ पे इंडिया को 5वें नंबर पे रखा गया था, ये जापान में हुआ था वर्ल्ड एक्सपो, ठीक है। हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडियन लैंग्वेज सेक्शन इन न्यू दिल्ली, इसने इंडियन लैंग्वेज सेक्शन का इनॉग्रेशन किया है रिसेंटली दिल्ली के अंदर, तो अमित शाह जी ने इस जगह का इनॉग्रेशन। हु रिसेंटली वॉन द 6th स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन आर्मेनिया जर्मनी, तो भाई ये चेस का टूर्नामेंट था, डी गुकेश साहब ने जीता है अभी रिसेंट। हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मे 2025, अभी रिसेंटली 2025 का आईसीसी क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, उसका हर महीने एक प्लेयर चुना जाता है सबसे बेस्ट जो होता है, अभी रिसेंटली किसे चुना गया है, तो लो ट्रायन और मोहम्मद वसीम, इन दोनों को चुना गया है बेस्ट क्रिकेटर या बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्लास खत्म करते हैं। ओके, फराज आलम का जवाब देते हैं कि बेटा हम अलीगढ़ में पान वाली कोठी पे हैं, ठीक है, बाकी एड्रेस के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 8218342419 हमारा नंबर, ये आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और कोई मुलाकात।